آج میں چاہتا ہوں کچھ اپنے مسلمان نوجوان بھائیوں اور بہنوں کے لیے پڑھا جائے۔ تو میں ایک سورہ الاحزاب میں آیت نمبر 34 اور 35 میں بڑی پسندیدہ آیت کریمہ دیکھا، میں بولا یہی پڑھ دیتا ہوں۔ یہ آپ لوگوں کے لیے، میں اسی لیے سوچا کا نام پڑھ دیتے ہیں۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے اور ایمان والیاں، ایمان والیاں سے اللہ کے فرمان کے مطابق مراد کون ہے؟ ایمان والیاں سے یہ ایمان والیاں ہیں کون ہے؟ تمہیں معلوم ہے؟ اور اس لیے ہم بولا اپنی کچھ نوجوان ماؤں اور بہنوں کے لیے پڑھ دیا جائے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے۔ اور فرما بردار اور فرما بردار ہیں، اور سچے اور سچیاں، اور صبر والے اور صبر والیاں۔ صبر والیاں سے تو آپ جانتی ہیں، آپ ہی لوگ ہیں، آپ لوگ بھی۔ اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں۔ عاجزی کا مطلب، عاجزی میں بہت سارا کچھ آ جاتا ہے۔ اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں۔ مجھے یہ آیت مبارکہ اس لیے بہت زیادہ پسند آئی کہ ہمارے مسلمان بہنوں کے لیے اللہ نے اپنے بندیوں کے لیے گن گن کر قرآن کریم میں فرمایا۔ اب بعض جگہوں پہ تو ایمان والو ایمان والو ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اللہ نے فرمایا، مگر یہاں ایمان والے ایمان والیاں، مرد اور عورت کو دونوں کو چھانٹ چھانٹ کے بیان کیا۔ کیوں بیان کیا؟ کاش میری بندی یہ نہ کہہ جائے، ہو مسلمان کلمہ پڑھنے والی، یہ اللہ نے میرے بارے میں بیان نہیں کیا۔ اس لیے یہ آیت مبارکہ مجھے بہت پسند آئی۔ میں بولا یہ پڑھنا میرے لیے بہت محبوب تھا، مولا کیوں نہ پڑھ دیا جائے۔ اور خیرات کرنے والیاں اور روزے والے اور روزے والیاں اور اپنی پارساہی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں، یہ مجھے بہت پسند آئی۔ اور اللہ نے جو فرمایا کہ پارساہی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں، یعنی سر جھکا کر چلنے والے اور سر جھکا کر چلنے والیاں، ہمارے نوجوان بھائی اور بہن، بالخصوص مسلمان، سر پہ دوپٹہ رکھنے والی ہماری مائیں اور بہنیں، پارساہی نگاہ رکھنے والے اور رکھنے والیاں، کتنی محبت سے اللہ بیان کر رہا، یہ سوچنے والی بات ہے۔ مجھے بہت پسند آئی اور بہت محبوب ہے۔ کیوں کہ ہماری بہنوں کے لیے اللہ نے خود بیان کیا کہ میری بندی کہیں یہ نہ کہے کہ اللہ نے ہمارا نام لے کر ہمیں نہیں پکارا، یہاں پکار رہا ہے۔ اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں۔ یہ میں سوچا کرتا تھا کہ بھائی مردوں میں رہتے ہیں تو بہت سارے ملتے ہیں اللہ اس کے رسول کا ذکر کرنے والے، کوئی بھی بات ہو اللہ جانتا ہے، اللہ اس کا رسول جانتا ہے، اللہ راضی ہو، اس سے زیادہ مجھے کیا چاہیے۔ ابو بیگم آپ کو تو معلوم ہے، میں تو عورتوں سے اور لڑکیوں سے بات کرنے میں بھی ڈرتا ہوں۔
आप नहीं में इतने दिन से हैं, 5-10 साल से मेरे साथ हैं, तो आप तो मुझे जानती हैं, तो मैं उनके बारे में पता नहीं, मगर एक वाकया हुआ, मौलाना अभी भी दुनिया में वो नौजवान मुसलमान मर्द और औरतें मौजूद हैं जिनके वजह से आसमान भी बाकी है और जमीन भी बाकी है, कायम है। कब दिखा? वो जो हमारी बहन कर्नाटका में वो नारा लगाई, दिल खुश हो गया कसम से। और लोगों ने क्या कहा, वाह रे मेरी बहन बड़ी बहादुर है, बड़ी। हमारी बेगम भी, हाँ उस वक्त कब मैं 2022 में आया था छुट्टी में ना, हाँ 2022 में ही आया था। 2022 का वाकया है। अब कौन सा महीना कितना ये तो गालिबन मुझे मई जून जुलाई हो सकता है, बराबर याद नहीं है, मगर यही हो सकता है। हमारी बेगम भी कहें, बोला चुप करो बेगम, गलत कह रही हो, हम भी बहादुर कहकर निकल जाएंगे, मगर कहीं उस बहन का दुपट्टा छीन जाता तो जो उनकी अपनी माँ है उनके दिल पे क्या गुजरती, जो उनके अपने बाप हैं, अपने भाई हैं, उनका तो कलेजा फट के गिर जाता। अब मैं उन बहनों की बात नहीं कर रहा हूं जो फेसबुक पे आके, इंस्टाग्राम पे आके वो अपने आप को मुसलमान करने वाली, ना, जिसको रब बयान कर रहा है मैं उनकी वाला ना है। आज भी दुनिया में वो हमारी नौजवान बहनें मौजूद हैं, बस दुआ करते रहो उनके लिए। तो मैं बोला ये जरूर, ये पढ़ते जरूर। बहुत याद करने वाले और याद करने वालियां, उन सब के लिए अल्लाह ने बख्शिश और बड़ा सवाब तैयार कर रखा है। मेरे रब्बुल आलमीन ने खुद सनद पेश कर रहा है कि बड़ा सवाब तैयार कर रखा है। आइए मैं सूरह अल अहजाब की कितनी आयतें करीब आयतें करीब पढ़ा, 34-35 पढ़ रहा हूँ। ये कितने खुशी की बात है, ये अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि आज भी हमारी वो नौजवान बहनें मौजूद हैं। अल्लाह ने उन्हीं लोगों के लिए कह रहा है, अल्लाह ने बख्शिश और बड़ा सवाब तैयार कर रखा है। एक होता है कि सिर्फ अल्लाह यह कह दे कि उनके लिए अल्लाह ने बख्शिश और सवाब तैयार कर रखा, मगर एक सबसे खुशी की बात यह कि बड़ा, ये जब रब कह रहा है कि बड़ा, वज़्ज़ा के कहा, वज़्ज़ाकिराती अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतुन व अजरन अजीमा। वो अजरन अजीमा पे गौर करने वाली है। अजरन अजीम भी कह सकता था, मगर अजीमा कहकर बड़ा लगा दिया। अब कितना बड़ा वो रब ही जब देगा हमारे भाइयों और बहनों को, उनका दिल उस वक्त क्या कहेगा, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, वो जाने, अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने। तो मैं अपनी उस बहनों के लिए कहता चलूं कि अगर शायद किसी ने आपको ये आयत करीमा पढ़ के ना सुनाया हो, आज तुम्हारा ये भाई पढ़ के सुना रहा, क्योंकि ये मुझे बहुत महबूब ये आयत करीमा, क्योंकि गिन गिन कर रब ने ईमान वाले मर्दों और औरतों को बयान किया है। और सबसे खुशी की बात यह है, हमारी कुछ नौजवान भाई और बहन इन चीजों से दूर रहते हैं, मगर जो नजदीक हैं, जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं, उनके अपने दीन, अपने कौम से, अपनी मिल्लत से, या अपनी मिल्लत का दर्द है, उनके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है।
तो बात बहुत ज़्यादा ना करते हुए मैं सोचा ये आयत करीमा अपनी उन बहनों के लिए, वो मुझे दिखा वो जब हमारी बहन नारा लगाई, अल्लाह ने खड़े खड़े उसके हिफाजत का नाम की, दिल खुश हो गया, कलेजा ठंडा हो गया कि वाह वाह रे मेरा रब्बुल आलमीन, तूने जीते जी माथे की आंखों से इस बहकती दुनिया में, लोगों बहकते हुए लोगों के दरमियान में ऐसी नौजवान हमारी बहन दिखाया, कलेजा ठंडा हो गया। कोई माने ना माने अल्लाह जानता है, किसी के लिए दुआ मांगे ना मांगे, अपनी नौजवान भाइयों और बहनों के लिए नमाज में जरूर दुआ मांगता हूँ। और ये भी दुआ मांगता था, या अल्लाह मुझे दिखा, या अल्लाह मुझे दिखा। मेरे रब ने दिखाया, दिल खुश हो गया। बेगम हाँ, तुम्हारा भी दिल खुश हुआ था कि तंग हो गया था? नहीं खुश हुआ था। होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। बैठाना मकसद नहीं था, बैठाना इसलिए मकसद था कि कम से कम हमारी उन बहनों को भी एहसास हो कि दुनिया में जब मैं, मेरे जैसी नौजवान लड़की या नौजवान औरत मौजूद है तो जो उसका संवर हो, ऐसे और कोई मर्द ऐसे हैं जो अपने बीवी को अल्लाह उसके रसूल की बातें बताते होंगे या बताते हैं। मेरी बहन घबराने की जरूरत नहीं है, बस लोग कैमरे पे आने से डरते हैं, नहीं तो मौजूद हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह का ये फकीर, ये अल्लाह का बंदा, ऐसा नहीं है। और मेरी बेगम अच्छी तरीके से जानती हैं, बेगम मैं ऐसा ही तो लेके बैठा नहीं, बाज़ औक़ात बाज़ाब्ता मैं सूरह बकरा सूरह आले इमरान की तिलावत तो करता रहता हूँ, सुबह में, रात को भी कारनामा तिलावत करता हूँ, ऐसा नहीं। नहीं, मुझे दर्द था, इसलिए मैं बोला अपने बहनों के लिए एक आयत करीमा पढ़ देता हूँ। इंशाल्लाह और भी हैं, वक्त मिला इंशाल्लाह तो मैं और भी पढ़ूंगा, और खास कर मेरी बहनों आप लोगों के लिए। और मुझे खुशी होती है जब ऐसे नौजवान भाई और बहन को देखता हूँ, तो वल्लाह अल्लाह गवाह है, दिल ही खुशी होती है। इसलिए मौला एक आयत करीमा अपने बहनों के लिए पढ़ देना चाहिए। हाँ, लास्ट में एक बात जरूर कहूंगा, मैं उनमें से नहीं कि जो किसी का मुंह देख के बात कर कि मेरा फला क्या सोचेगा, मेरा फला रिश्तेदार क्या सोचेगा। नहीं, अल्लाह उसका रसूल क्या सोचता है मेरे बारे में, सबसे पहली फिक्र मुझे ये रहती है। इसलिए मैं एक छोटी सी वीडियो बनाता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए जब लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मुसलमानों का हाथ पकड़ कर नहीं चलेंगे तो कौन चलेगा, एक दूसरे से कांधे से कांधा मिलाकर नहीं चलेंगे तो फिर कौन चलेगा। इसके लिए भूले ना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दो चार बातें तो अपने बीवी से करवा देता, मगर मेरी बेगम जो है ना, वो तो फोटो खिंचाने में इनको शर्म आती, ये कैमरे पे बोलेंगी क्या। इंशाल्लाह बैठते बैठते हो सकता है आदत पड़ेगी, इंशाल्लाह बोलेंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सलाम जरूर कबूल करें, और सलाम का जवाब भी इंशाल्लाह दें।